Good morning, students. Today we will study chapter number 5 of Civics, Gender and Gender Inequality. Students, chapter 4 is not in your syllabus. Chapter 4 आपके syllabus में नहीं है. इस chapter को cut कर दीजिए and please no need to make any kind of confusion and any phone call regarding that. Now let's start chapter number 5. Gender and Gender Inequality. Before reading the chapter, let's have a quick view on the important key points which we will discuss in this chapter. First, we'll discuss about the term gender. Second, about the gender discrimination. And third one is about the government work to improve the gender inequality. Now, Riya and Rohit's grandmother has come from their native village to visit their family in the city. Now, a conversation is given here about this family. Let's read. Riya, go and make some tea for your father. Grandma, I'll go and make the tea. Papa loves the tea I make. This conversation, Riya's grandmother Rohit तीनों हैं. Grandmother रिया से कहती है, Riya, go and make the tea for your father. But रोहित कहता है कि नहीं grandma, I'll prepare the tea. मैं टी बनाता हूँ. Father loves the tea which I make. कि father को मेरे हाथ की टी बहुत पसंद है. What? I cannot believe I'm hearing this. You are a boy. You cannot do what the girl is supposed to do. तो दादी माँ कहती है, क्या सुन रही हूँ मैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़के हो और तुम्हें वो लड़कियों वाले काम कर रहे हो. लीव द चॉर्स इन द किचन टू योर मदर्स एंड सिस्टर. कि किचन के काम को अपनी मम्मी और बहन के लिए ही रहने दो. देन रियाज फादर रिप्लाई, मदर इट इज ओके. रोहित कैन मेक द टी. आई हैव टॉट बोथ रिया एंड रोहित to take equal responsibilities for the chores in the kitchen like their mother and I do. रोहित के पापा समझाते हैं कि मतलब इट्स ओके, सीख है. मैंने दोनों बच्चों को अपने किचन के काम दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना सिखाया. दोनों को सारी चीज़ें सिखाई हैं कि जैसा कि मेरी वाइफ और मैं एक अपने हाउस घर के काम को शेयर करके करते हैं, इसी तरह हम बच्चों को भी यही सिखाया है. तो देन ग्रैंड मदर रिप्लाई करती हैं, इट इज़ नॉट ओके सन. I don't think you should do that. Riya must learn to act like a lady and Rohit must learn to act like men. तो ग्रैंड मदर को बहुत गुस्सा आता है. बोलती नहीं रिया, तुमने गलत सिखा रहे हो. रिया को एक लेडी की तरह वर्क करना चाहिए और रोहित को एक मैन की तरह बिहेव करना चाहिए. Do you think the story is a comic strip reflected different attitudes towards boy and girl? Indeed, it does. Almost all the society assign different role to men and women. These roles have traditionally been assigned based on their physical abilities and the belief that the society holds about men and women. It is therefore important to understand what is distinction between men and women are. Now the story which we have read about the Riha, Rohit and grandmother डिफ्लेक्ट डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉय एंड गर्ल. तो इसमें अलग अलग एटीट्यूड शो किए गए हैं बॉय और गर्ल के लिए कि किसका क्या अलग रवैया है, किस नज़रिए से देखते हैं. कि इसमें ग्रैंड मदर का अलग एटीट्यूड है, इनके फादर का अलग है. इन ईच एंड एवरी सोसाइटी, हर समाज में गर्ल्स और बॉय के जो रोल हैं वो अलग अलग डिफ़ाइन किए गए हैं, उनके लिए रोल बनाए गए हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एबिलिटी. और जो रोल डिसाइडेड किए गए हैं वो उनकी फिजिकल एबिलिटी और बिलीव ऑफ सोसाइटी, समाज की कुछ बिलीव्स होते हैं, उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं, उस पर आधारित है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेन एंड वुमेन आर. और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसमें डिस्टिंक्शन को हम जानें. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर अगेन. द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स. कम टू द पॉइंट, जेंडर एंड सेक्स. The first distinction that exists between the boy and girl is biological, based on the physical and anatomical difference known as sex. Now student, what is the difference between gender and sex? Gender और sex में क्या difference होता है? First we will read about the sex. Sex क्या चीज़ है? Sex हमारा girl और boy
डिफरेंस है बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंस, कि हमारे शरीर की बनावट के आधार पर और भगवान ने जिस हिसाब से हमारे शरीर की रचना की है बायोलॉजिकल डिफरेंस में आता है, उसके आधार पर जो डिफरेंस है बॉय और गर्ल का, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिफरेंस, यानी सेक्सुअल डिफरेंस, सेक्स में अंतर। समझ आ गया फर्स्ट? तो सेक्सुअल डिफरेंस में क्या है? सेक्सुअल डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ गर्ल एंड बॉय बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बेसिस, जो बायोलॉजिकल बेसिस पे यानी हमारी शरीर की संरचना, हमारी शरीर की बनावट के आधार पर जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज सेक्स। क्लियर? द अदर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल इज नोन एज जेंडर। दूसरा जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं जेंडर। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट based on the socially and the culturally prescribed roles and of boy and girl are made to follow. अब जेंडर डिफरेंस क्या है? जेंडर डिफरेंस हमारे कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, हमारे समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है कि कुछ रोल्स दे दिस प्रिस्क्राइब सम रोल्स, कि कुछ काम जो हैं वो बॉय के हैं, कुछ काम जो है वो गर्ल्स के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं, और उसमें जो डिफरेंस किया गया है कि दीज आर द वर्क टू बी डन बाय द बॉय एंड दीज आर द वर्क टू बी डन बाय द गर्ल्स। तो उसका जो अंतर है, जो हमारे समाज ने क्रिएट किया है एक लड़के और लड़की में अंतर, उसे हम कहते हैं जेंडर डिफरेंस। तो क्लियर सम हो गया जेंडर और सेक्स में डिफरेंस। सेक्सुअल डिफरेंस जो होता है वो हमारे शरीर की बनावट के आधार पर है, और जेंडर डिफरेंस इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टेड और क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, जो हमारे समाज ने क्रिएट किया है, दैट इज जेंडर डिफरेंस। क्लियर? आवर फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड स्कूल्स lay down different socially approved behaviors for boy and girls. As we grow into men and women, we keep imbibing these socially defined roles till they became as inseparable part of our identity. कि हमारे समाज ने, हमारे फैमिली में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे स्कूल्स में सम डिफरेंसेस आर देयर, कुछ अंतर किए जाते हैं फॉर बॉय एंड गर्ल। एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं मैन और वेमेन में, वी कीप अप इम्बिंग मीन्स टेक इन, उस चीज़ को अपना लेना। दीज सोशल डिफरेंस, हम उसको अपना लेते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो समाज ने हमारे लिए क्रिएट होता है, हम उस चीज़ को अपना लेते हैं, और उसी बिकेम अ इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, और वही हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। Societies across the world make clearly distinction between boy and girls from a very early age. कि सोसाइटीज़, हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, समाज हैं, across the world, पूरी दुनिया में क्लियर डिस्टिंक्शन, उन्होंने बिल्कुल क्लियर डिफरेंस किया है, अंतर किया है बिटवीन बॉय एंड गर्ल फ्रॉम वेरी अर्ली एज। बहुत पुराने समय से जो बॉय और गर्ल का डिफरेंस है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, as young children, we are given different toys to play with. Boys are generally given cars or balls, while girls are given dolls to play with. Example is given here students कि as young children, जब हम young होते हैं, छोटे होते हैं, we are given different type of toys to play. हमें बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं अलग अलग तरह के। तो यूजुअली जनरली जो बॉयज़ होती हैं उनको बर्थडे गिफ्ट में क्या मिलता है? कार्स देते हैं, बॉल्स देते हैं खेलने के लिए। वाइल गर्ल्स आर गिवन टॉयज, अगर किसी गर्ल का बर्थडे होगा तो गर्ल के लिए उसकी कोई गिफ्ट लेना है तो यूजुअली डॉल्स दी जाती हैं। बॉय का बर्थडे है तो कार है। तो बोथ टॉयज कैन बी फन फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल। देन वाई द गर्ल्स गिवन डॉल एंड बॉयज कार? बोथ टॉयज कैन बी फन, जो दोनों के लिए, जो टॉयज से क्या होता है, फन करते हैं, गेम खेलते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक मेंटलिटी है, क्रिएट की गई है कि नहीं, बॉय है तो उसको हम डॉल नहीं दे सकते। अरे भाई, लड़के का बर्थडे है, उसको डॉल कैसे दे सकते हैं? नहीं, हमारे हम लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि एक लड़का भी डॉल से खेल सकता है। नहीं, हम लड़की को ही डॉल देते हैं और लड़के को कार देते हैं। तो ये हमारे समाज में ये डिफरेंस पहले से बहुत पुराने समय से क्रिएट हो चुका है। टॉयज बिकेम
the indirect way to telling the children that they would have different roles to play in the society when they became men and women. टॉयज़ कैन बी इनडायरेक्टली वे. टॉयज़ एक इनडायरेक्ट वे है. हम अलग अलग टॉयज़ देकर बच्चों को, हम अलग अलग टॉयज़ देकर टेलिंग देम, उनको ये बता रहे हैं कि दे हैव टू प्ले डिफरेंट रोल. उनका समाज में अलग रोल है. जब वो बड़े होंगे, अलग मेन और वुमेन बन जाएंगे, तो उनका समाज में उन्हें अलग रोल प्ले करना है. इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी कैन फाइंड सच डिफरेंसेस created in the smallest thing. कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि अलग क्रिएटेड सच डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस क्रिएट किए गए छोटी छोटी चीज़ों के कारण ही समाज ने इस तरह के डिफरेंस क्रिएट किए हैं जेंडर में. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिया एंड रोहित्स ग्रैंडमदर, रोहित मस्ट नॉट मेक टी बिकॉज इट इज़ अ गर्ल्स और वुमेन्स जॉब. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिया एंड रोहित ग्रैंड मदर, रोहित और रिया की ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग रोहित टी नहीं बना सकता है बिकॉज इट इज़ अ गर्ल और वुमेन्स जॉब. क्योंकि चाय बनाना किसका काम है? एक लड़की का या औरत का काम है, इसलिए रोहित नहीं बना सकता. सच डिफरेंसेस इमर्ज इन अ फॉर्म ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप. इस तरह के जो डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं वो आगे चलकर हम उसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं. टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप. कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप के. फर्स्ट इज बॉयज़ डोंट क्राई. हमने ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट किया है. स्टीरियोटाइप मीन्स हमारी एक मेंटलिटी जो सेट हो जाती है उसे हम कहते हैं स्टीरियोटाइप. तो हमने मैन को लेकर और वुमेन को लेकर, बॉय या गर्ल को लेकर एक अपनी मेंटलिटी क्रिएट कर ली है, एक अपनी धारणा बना ली है. जो इसमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ लड़के रोते नहीं हैं. गर्ल्स आर बैड इन मैथ्स, मैथमेटिक्स. ये हमारी दूसरी मेंटालिटी है कि गर्ल्स की जो मैथ्स है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स की जो मैथ्स है वो अच्छी नहीं होती. गर्ल्स आर पुअर इन मैथ्स. टेक्नोलॉजी इज़ फॉर मैन. कि जो टेक्निकल जो वर्क होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वर्क, वो किसके लिए बनाए गए हैं? मेन के लिए. नेक्स्ट, वुमेन्स आर बैड ड्राइवर. अब ऐसा हमारी स्टीरियोटाइप फीलिंग है, हमारी ये धारणा है, ऐसी सोच है हमारी कि विमेंस जो हैं वो बैड ड्राइवर्स होती हैं, अच्छा ड्राइव नहीं करती हैं. एंड सो ऑन. और ऐसी बहुत सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो हमने, धारणाएं, विचार हैं जो हमने अपने दिमाग में सेट किए हैं जेंडर्स को लेकर. मैनी स्टोरीज दैट यू रीड और द फिल्म्स दैट यू वॉच reinforce that gender stereotyping where girls are portrayed as weak and dependent while boys are portrayed as tough and active. Now student, many stories, many films, many things which you have seen in your society also, आपने बहुत सारी स्टोरीज बुक में पढ़ी होंगी, मूवीज़ भी देखते हैं, हमारे समाज में भी देखते हैं, जिसमें जेंडर स्टीरियोटाइप यानी और मैन और वुमेन का, जो बॉय और गर्ल का जो डिफरेंस है वो हमें साफ दिखाई देता है. उसमें दिखाया जाता है कि वुमेन्स को बहुत वीक और डिपेंडेंट शो किया जाता है कि वुमेन्स जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और डिपेंडेंट है दूसरे पे, निर्भर हैं पूरी तरह से. जबकि बॉयज़ को किस तरह का पोर्ट्रेट, किस तरह का शो किया जाता है कि दे आर टफ एंड वेरी एक्टिव. Women or girls are generally passive participants and all the actions are taken care for by the men and boys. Women और girls जो है वो passive participants होते हैं and all the actions are taken, और जो भी action है वो boy और men के द्वारा लिए जाते हैं. In a comic strip that you have read, Riya and Rohit's grandmother has been conditioned to believe that cooking and household chores for female and males should be given a superior treatment. Such notions lead to the gender equality. कि अभी हमने जो कॉन्वर्सेशन पढ़ा था अबाउट रिया, रोहित एंड रोहित्स ग्रैंड मदर, वो हमें ये शो करता है कि कुछ ऐसा बिलीव है कि कुकिंग और हाउस होल्ड से रिलेटेड जो वर्क हैं, घर के जो काम हैं, वो मोस्टली फॉर फीमेल, वो ज़्यादातर वर्क फीमेल्स के लिए होते हैं. मेल शुड बी, और जो मेल हैं उनको सुपीरियर ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको एक अलग सुपीरियर यानी अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए. सच नोशन क्रिएट, और इस तरह की जो नोशंस हैं, इस तरह के जो विचार हैं
वो क्या क्रिएट करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं. नाउ जेंडर इनइक्वालिटी. Men and women are both equal, but the concept of gender and gender-based distinction between the two result in unfair treatment of one sex and the women. कि men and women both are equal, born equal, जन्म से दोनों equal पैदा होते हैं, बट द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड द जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है अबाउट जेंडर, जो हमारे समाज ने जेंडर को लेके डिफरेंस क्रिएट किया है, अनफेयर ट्रीटमेंट फॉर वन सेक्स, वो एक सेक्स के लिए अनफेयर ट्रीटमेंट क्रिएट करता है. वो कौन सा सेक्स है जिसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, द विमेन. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज एग्जिस्ट सिंस द अर्ली टाइम. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है डिफरेंस, भेदभाव जो करते हैं, वो आज से शुरू नहीं है, सिंस अर्ली टाइम, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है. इट्स प्रोबेबली वॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द काइंड ऑफ वर्क दे वर एबल टू डू एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस. कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बेस्ड है इज इन अ काइंड ऑफ वर्क दे कैन डू, कि किस तरह का काम वो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस किया गया है. एंड देयर बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको देखकर भी जेंडर डिफरेंस क्रिएट किया गया है. ट्रेडिशनली men were the breadwinners and the women were the caretakers. ट्रेडिशनली ऐसा बिलीव है, दिस बिलीव कि मेन जो हैं दे वर ब्रेड विनर्स. ब्रेड विनर्स मीन्स, ब्रेड किसको कहते हैं, रोटी को. ब्रेड विनर्स मीन्स कि हम ये है कि रोटी कमाने वाला, पैसा कमाने वाला है, पैसा कमाएंगे तभी रोटी आएगी. तो मेन को हम मानते हैं वो ब्रेड विनर्स हैं, यानी पैसा कमाने लेने वाले हैं, ब्रेड लेने वाले, रोटी कमाने वाले हैं. एंड विमेंस वर केयर टेकर, और विमेंस कौन है, केयर टेकर है. ओवर द एजेस men came to be regarded superior because of their ability to support the family by providing food and money. Keep over the ages, बहुत पुराने समय से जो men हैं they regarded superior, उन्हें एक superior category, उन्हें बहुत ज़्यादा importance दी गई है. क्यों दी गई है, because of their ability, क्योंकि उनमें ability थी. किस तरह की ability थी, to support the family, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, एंड प्रोवाइड देम फूड एंड मनी. Women were pushed into the backward and their tasks were considered to be unworthy and inferior. वुमेंस को बैकवर्ड माना गया, उनको पुश किया गया, उनको पीछे की तरफ धकेला गया और उन्हें बैकवर्ड माना गया. क्यों, एंड देयर टास्क, क्योंकि वुमेंस के द्वारा जो टास्क किए गए, उनको जो काम दिए गए, दे वर अनवर्दी एंड इन्फीरियर. उन वुमेंस के काम को इन्फीरियर, छोटा माना गया कि ये तो कुछ काम करती ही नहीं है, घर पे रहती हैं सारे दिन भर, कुछ काम नहीं है, झाड़ू पोछा करना है, कुछ नहीं, खाना पकाना, बस उनके वर्क को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. दे कुड नॉट वॉइस देयर ओपिनियन एंड दे वर डिनाइड access the education and their basic facilities. Women and girls were dependent on their fathers or brothers before marriage and after marriage on their husbands. कि वुमेन्स एंड गर्ल्स जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट माने गए, किस पर, अपने फादर पे और ब्रदर पे बिफोर देयर मैरिज. कि अपनी शादी से पहले एक जो वुमेन है या गर्ल है वो अपने फादर पे, भाई पे डिपेंडेंट होती है, एंड आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद ऑन देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है. द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी क्रिएट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी. कि द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन, कि मेन और वुमेन को जो डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया, अलग अलग व्यवहार उनके साथ किया गया, उसने हमारे समाज में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट किया, जिसे हम जेंडर इनइक्वालिटी भी कहते हैं. इन मेनी सोसाइटीज़ women face discrimination and are given low status in the society. कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में वुमेंस को डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनको बहुत लो स्टेटस, समाज में बहुत लो स्टेटस यानी बहुत लोअर कैटेगरी का माना जाता है, उन्हें कोई इज्जत नहीं दी जाती. देयर वर्क इज़ अंडर वैल्यूड
and they receive less wages than men for the same amount of work. कि वुमेंस का जो वर्क है उन अंडर वैल्यूड, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, उसकी महत्व ज़्यादा नहीं है, और दे रिसीव वेरी लेस वेज, उन्हें जो काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, वेजेस दी जाती हैं, वो भी बहुत कम है। द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, वो सेम अमाउंट ऑफ उतना ही काम कर रही है जितना एक मैन करता है, लेकिन फिर भी उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो सैलरी है, वो मैन के कंपैरिजन में, एक आदमी के कंपैरिजन में कम होती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 19th century, social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Vidyasagar and Dayanand Saraswati, reformers were introduced to uplift the position of Indian women. Under influence of 19th century, 19th century में some social reformers बने, कुछ social reformers थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती। इन तीनों लोगों ने they have done so much work for the upliftment of women in the Indian society. इन्होंने इंडियन सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी उसकी इस पोजीशन को सुधारने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स मीन्स होता है सुधार, बहुत सारे सुधार किए। राजा राम मोहन रॉय was instrumental in abolishing sati, an inhuman practice under which a married woman burned herself at the prey of her husband after the death. राजा राम मोहन रॉय ने एबॉलिश करना, एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना, ख़त्म करना, सती प्रथा जो पुराने समय में भारत में चल रही थी, इनह्यूमन प्रैक्टिस, एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी सती प्रथा, उसको समाप्त करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सती प्रथा में एक जो लेडी थी, मैरिड लेडी, was burned herself, उसे बर्न, खुद को जलाना होता था, at the prey of her husband after the death, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी चिता पर वो खुद को भी, उसे अपने आप को जिंदा जलाना होता था। उस सिस्टम को कहते थे सती प्रथा। तो राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और उन्होंने इस जो इनह्यूमन एक्टिविटी थी उसको बिल्कुल अबॉलिश, ख़त्म करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। Ishwar Chandra Vidyasagar contributed by getting the Widow Remarriage Act passed in 1856. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कंट्रीब्यूशन ग्रेट वुमेन, उन्होंने बहुत एफर्ट किए, बहुत कोशिश की, और विडो रीमैरिज एक्ट, यानी विधवा जो लेडी हो जाती है उनके पुनर्विवाह यानी दोबारा शादी करने का एक कानून बनवाया, जो 1856 में उन्होंने पास करवाया। Dayanand Saraswati opened a number of colleges and schools to promote women. कि दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले जो जिससे कि वो जो वुमेन एजुकेशन है, औरतों की जो शिक्षा है, उसको प्रमोट कर सकें, आगे बढ़ा सकें। In India, like elsewhere, progress has been made in giving equal status to women constitution, but जेंडर इक्वालिटी रिमेन्स अ ड्रीम इन मेनी स्पेयर्स। कि इंडिया में प्रोग्रेस हुई, बहुत सारा डेवलप हुआ, बट लेकिन वुमेंस का जो स्टेटस है रिमेन्स अ ड्रीम ऑफ मेनी स्पेयर। अभी भी बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वुमेंस को इक्वल ट्रीटमेंट आज भी नहीं दिया जाता है। इन द 20th century, many social reformers and the movement supporting women's empowerment came into being. कि 20th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिससे कि वुमेंस को एम्पावरमेंट मिले, उनको शक्ति मिले, उनको ताकत मिले। वुमेन across the world demanding to treated equally, to be given equal political rights and to be given wages for the same work. वुमेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो वुमेंस थी उन्होंने डिमांड करना शुरू किया इक्वल ट्रीटमेंट, कि हमें भी समान अधिकार मिले, समान हमारे साथ व्यवहार किया जाए, पॉलिटिकल राइट्स मिले हमें, और इक्वल वेजेस फॉर द वर्क। इट वाज रियलाइज्ड दैट द इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स कंडीशन वाज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड द सोसाइटी। कि ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन कंडीशन, अगर औरतों की कंडीशन इम्प्रूव होगी तो एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक देश को आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, या हमारे समाज को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए वुमेंस की कंडीशन को इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंटली वुमेंस वर गिवन इक्वल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट।
और इसलिए वुमेंस को बाद में इक्वल राइट्स दिए गए, पॉलिटिकल क्षेत्र में, सोशल समाज में और इकोनॉमिक क्षेत्र में वुमेंस को इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार दिए गए. That's all in this class, student. We will continue our chapter in our next class. Till then, have a nice day.